So today we are going to do the topic velocity. Velocity you may represent by small s से हम represent कर सकते हैं. And velocity is what? Velocity is displacement upon time. Displacement is a vector quantity. Displacement is a vector quantity. Vector quantity means what? Which is going to depend. Vector means what? Which depends upon magnitude and direction. Depends upon direction. So the quantities, physical quantities which depend upon magnitude as well as direction is a vector quantity. So displacement is a vector quantity. Similarly, if displacement is a vector quantity, then velocity is also a vector quantity. And for indicating vector quantity, we use what? A small arrow like this. So you might be finding in your book not given the arrow, but in higher classes when you will start studying, you will see that arrow is given there. Okay, everybody? So what is it? So velocity is displacement by time. Suppose if we are moving in a particular direction, okay, if we are taking particular direction, say A and B, taking point like this, okay. Time is what? We have started at 9. This is 9:15, 9:30, then 9:45. 10, 10:15, 10:30. If the speed, this is the initial, this is here the car is at rest. यहाँ पर कार जब स्टार्ट कर रहे हैं वहां पे क्या है? रेस्ट पर है. बट ये जो इतना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, वो डिस्टेंस कितना है? ये मान लो ये 2 किलोमीटर है. उसके बाद 2 किलोमीटर है, ये है फिर आपका 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 kilometer, 10 kilometer, and 12 kilometer. So this figure which you are seeing here, you can see that the time is equal interval. Equal interval is there, and equal distance is being covered. Equal distance is being covered. When equal distance is covered in equal interval of time, then such type of motion is called what? Uniform motion. इसको हम क्या कहते हैं? Uniform motion. Uniform motion. हाँ, uniform motion. And here we are seeing that this is also what? A kind of uniform velocity is there. What is there? Uniform velocity है यहाँ पर. क्यों uniform velocity है? इस वेलोसिटी को हम यहाँ पे मालूम करेंगे कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, विद टाइम क्या है, डिस्प्लेसमेंट विद टाइम क्या है, स्पीड विद डायरेक्शन क्या है, वेलोसिटी क्या है, स्पीड विद डायरेक्शन. ओके, व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी इज व्हाट? स्पीड विद डायरेक्शन. सो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द कार? व्हाट इज द स्पीड? तो यहाँ पर ये जो वेलोसिटी यहाँ पर जो हो रहा है वो वेलोसिटी क्या यूनिफॉर्म है ना. इक्वल इंटरवल है 15 मिनट्स का. आफ्टर एवरी 15 मिनट इट इज कवरिंग 2 किलोमीटर. आफ्टर एवरी 15 मिनट 2 किलोमीटर डिस्टेंस इज बीइंग कवर्ड. So such type of velocity is called what? Uniform velocity. वैसे velocity को हम क्या कहेंगे? Uniform velocity. One line is given in your NCERT book that the object moving will be uniform or variable. It is given now. The object, the velocity of an object can be uniform or variable. So in which condition it will be uniform? It will be uniform when equal distance will covered in equal interval of time. Then such type of velocity will be said to be what? Uniform velocity. Uniform velocity. इसको हम क्या बोलेंगे? वेलोसिटी कैसा है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी है. एंड व्हेन वी हैव टू फाइंड आउट द uniform velocity, then for that
मान लो कि ये पूरा हमको निकालना है, यहाँ से कार ट्रेवल किया है बी तक, तो इसका यूनिफॉर्म वेलोसिटी निकालना है, तो क्या करना होगा? दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? इसका जो एवरेज वेलोसिटी होगा, इसका जो एवरेज वेलोसिटी होगा, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? दैट विल बी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। आप लोग समझ रहे हैं ये बात? आप लोग समझ रहे हैं? ये किस कंडीशन में होगा? ये किस कंडीशन में होगा? When the velocity is uniform. When the velocity is uniform, in that condition, how are you going to take out the average velocity? जैसे एवरेज स्पीड निकाला था ना, आप लोगों ने एवरेज स्पीड निकाला था। एवरेज स्पीड कैसे निकला था? डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बाय व्हाट? टोटल टाइम। Okay, class? Total distance by total time. Is it okay to everybody? Yes, ma'am. तो जब कार रेस्ट से शुरू हुआ था तो ये तो 0 ही होगा। अगर यहाँ से हम यहाँ देखें, डिस्प्लेसमेंट देखें, अगर यहाँ से यहाँ हम डिस्प्लेसमेंट देखें और इनिशियल या फाइनल भी ले, तो भी क्या होगा? 0 + 12 क्या आएगा? 12 ही आएगा, है ये Yes, नहीं? ma'am. हेलो, ये किस कंडीशन में होगा? जबकि नॉन यूनिफॉर्म हम ले रहे हैं। यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं? यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं? यूनिफॉर्म ले रहे हैं। तो यूनिफॉर्म के कंडीशन में हम टोटल डिस्प्लेसमेंट को देखेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, व्हाटएवर टोटल टाइम इज देयर दैट वी विल टेक। दिस इज द कंडीशन ऑफ व्हाट? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बट इन नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, व्हाट आर द थिंग इन नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी? non-uniform velocity. When this condition is going to arise, non-uniform velocity कब arise होगा? जबकि स्पीड चेंज होगा या स्पीड कांस्टेंट होगा और डायरेक्शन चेंज होगा। There will be two conditions. And the बताया था ना, वेलोसिटी चेंज कब होता है? वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म कब हो जाएगा? जब उसका स्पीड चेंज होगा या फिर स्पीड कांस्टेंट है और डायरेक्शन इज चेंजिंग, डायरेक्शन चेंजिंग, या दोनों चेंज हो तब भी होगा। सो नॉन यूनिफॉर्म का कंडीशन क्या है? नॉन यूनिफॉर्म का कंडीशन है इफ द स्पीड इज चेंजिंग, डायरेक्शन इज सेम, और इफ द स्पीड इज सेम एंड डायरेक्शन इज चेंजिंग, that is the situation when the velocity is said to be what? Non-uniform. Non-uniform. और उसको निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे? अगर उसका एवरेज वेलोसिटी निकालना होगा तब हम लोग क्या देखेंगे? इनिशियल प्लस फाइनल। क्या देखेंगे? एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? उसका हो जाएगा क्या? इनिशियल प्लस फाइनल by what? By 2. In that condition it will be what? It will be by 2. क्या है ये? velocity है, velocity. Understood? Hello, Yes, class. This is the condition of non-uniform velocity. For uniform velocity, what is the formula? What is the formula? Average के लिए हम क्या लेंगे? Average velocity will be equal to what? Will be equal to total displacement by what? Total time. Total displacement by total time. I hope this thing is clear. Yes, ma'am. क्लियर? और इसका बेस्ट एग्जांपल, नॉन यूनिफॉर्म का बेस्ट एग्जांपल क्या होगा? व्हेन अ कार इज मूविंग इन अ सर्कुलर वे, कार इज मूविंग इन अ सर्कुलर वे, देन एट ईच टाइम इट इज चेंजिंग द डायरेक्शन,
when the car is moving in a circular direction and at each point it is changing the direction. Okay, speed might be same, speed might be same. Even if the speed is also changing and direction is also changing, that will be also the situation of what? Non-uniform motion. वहां पर भी सिचुएशन किसका ही होगा? non-uniform का होगा. Okay, because in all the three situations, this I was discussing about what? About the speed, velocity and acceleration. Speed क्या है? Distance by time. The distance that you are traveling in 1 unit time is a speed. Velocity is what? Displacement. Whatever displacement is made by an object in unit time. And acceleration क्या है? Change in velocity per unit time. The SI unit of this one is meter per second. इसका भी क्या है? मीटर पर सेकेंड. यहाँ पर क्या हो जाएगा? Velocity is meter per second. Meter per second and time is what? Second. So now what it is going to become? Meter per second square. So acceleration SI unit will be what? Meter per second square. Acceleration and velocity is a vector quantity because both of them are depending upon what? Direction. But speed is a scalar quantity. It does not depend upon direction. Now I have taken an example of a car which is at point A, and at point A it is in rest. At point A it is in rest. Now when it moves to point B, it has traveled what? 4 meter per second in 10 second. Okay, ये क्या कवर किया? डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है इसका? 4 मीटर पर सेकेंड हुआ है. कितने टाइम में हुआ है? तो 10 सेकेंड में हुआ. 10 सेकंड. तो अगर हम इसका वेलोसिटी निकालें, क्या निकाले? चेंज इन वेलोसिटी. क्या निकालेंगे? चेंज इन वेलोसिटी. चेंज इन वेलोसिटी. तो चेंज इन वेलोसिटी जब भी हम चेंज निकालेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल निकालेंगे. क्या निकालेंगे? मान लो इसको हम वी आई मान ले और इसको वी एफ मान ले. वी आई वेलोसिटी इनिशियल और ये वी फाइनल वेलोसिटी फाइनल. तो चेंज इन वेलोसिटी हमेशा क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल होगा. क्या होगा? इट विल बी फाइनल माइनस इनिशियल. तो फाइनल कितना है? 5 है. 5 मीटर पर सेकेंड है और इनिशियल क्या है? 0 मीटर पर सेकेंड. तो क्या आ रहा है हमारा? चेंज इन वेलोसिटी क्या आ रहा है? 5 मीटर पर सेकेंड आ रहा है. ओके, कितने पर सेकेंड कितना आ रहा है? अब हमको एक्सेलरेशन निकालना है ना. इसका एक्सेलरेशन निकालना है. तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट? चेंज इन will be what? Change in velocity by what? By time. Change in velocity by time. तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आया? 5 मीटर पर सेकेंड आया और टाइम कितना है? 10 सेकेंड है. तो कितना आ जाएगा बताओ? कितना आ जाएगा? आंसर क्या आएगा? इसको कट करेंगे तो 1/2 को डेसिमल में लाएंगे. 0.5 मीटर सेकंड स्क्वायर. 0.5 मीटर सेकंड स्क्वायर. 0.5. ओके, 0.5 क्या आ जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो ये जो वैल्यू आया आपका क्या है? पॉजिटिव वैल्यू है. ये जो वैल्यू है ये क्या है? पॉजिटिव है. या एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन इज व्हाट? Acceleration is positive. Acceleration may be positive. Acceleration may be negative. Okay. Acceleration may be positive or it may be negative. तो positive कब आएगा? जब
फाइनल वेलोसिटी इज मोर देन द इनिशियल वेलोसिटी। अगर फाइनल वेलोसिटी से क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी कम होगा। ज्यादा। फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से क्या होगा, ज्यादा होगा, सॉरी इट विल बी मोर। तब आपका एक्सेलरेशन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर हम इस फिगर को और आगे एक्सटेंड करें, मान लो हम कहें कि ये आगे और जा रहा है, पॉइंट सी तक जा रहा है, ओके, इट्स गोइंग टू पॉइंट सी एंड नाउ द चेंज इन स्पीड, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड हो रहा है। कितने टाइम में हो रहा है, तो जो है ये टाइम हम ले लेंगे, मान लो 2 सेकंड लेते हैं, ठीक है, 2 सेकंड में इतना हो रहा है, ओके। नाउ व्हाट विल बी द चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी क्या आ जाएगा फॉर द, ये तो फर्स्ट केस है, ये है फर्स्ट केस। सेकंड केस में क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा आपका फाइनल कितना है, फाइनल हो गया 2। 2 अब इस केस में फाइनल 2 क्या हो गया, मीटर। 2 हो गया, तो 2 और इनिशियल कितना हो गया 4 पर सेकेंड, तो क्या आया -2, -2/2 आया, इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है। तो दिस इन द सेकंड केस फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन व्हाट, is less than initial velocity. Okay class, final velocity is final, this one is a final velocity, now this one is initial and this one is final. So final velocity is less than what, initial velocity. तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन जो आ रहा है, एक्सेलरेशन इज व्हाट, निगेटिव। एक्सेलरेशन Yes, का ma'am. वैल्यू क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। तो ये जो निगेटिव एक्सेलरेशन आ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, डी एक्सेलरेशन, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिटार्डेशन। इज इट ओके एवरीवन? Yes, ma'am. डू यू हैव एनी क्वेश्चन? Do you want to ask any question? You can see in your book, all of you, acceleration is given what, change in velocity. In your book it is written final velocity को किससे रिप्रेजेंट किया गया है, तो v से, और इनिशियल को किससे रिप्रेजेंट किया गया है, u से। तो v is the final velocity and u is the initial velocity. This kind of motion is known as what, accelerated motion. ये जो change in velocity by time हो रहा है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैसे मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, accelerated motion को। The acceleration is taken to be positive if it is in the direction of the velocity and negative when it is opposite to the direction of the velocity. The SI unit is meter per second square. If an object travels in a straight line and the velocity increases or decreases by equal interval of time, then the acceleration of an object is said to be uniform. तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ट्रैवल कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, एंड वेलोसिटी इंक्रीज चाहे तो इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा बाय इक्वल अमाउंट, either it's going to increase or it's going to decrease, but the amount will be what, equal, displacement will be what, equal in equal interval of time, then such type of acceleration is called to be what, यूनिफॉर्म। वैसे एक्सेलरेशन को हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म। जहां पर इक्वल इंटरवल इक्वी डिस्टेंस हो, सच इज कॉल्ड यूनिफॉर्म, एंड व्हेन देयर इज difference in speed or difference in direction, then such is called what, non-uniform. The motion of a freely falling body is an example of uniformly accelerated motion. ठीक है, जब कोई भी चीज को हम, ठीक है, ऐसे नीचे गिराते हैं, जब किसी चीज को हम ऊपर से नीचे गिराते हैं, फॉलिंग, ठीक है, अगर कोई चीज गिर रहा है नीचे, मैं रब दिस पार्ट, फॉलिंग,
अगर हम किसी चीज को नीचे गिरा रहे हैं तो क्या है, यहाँ पर वेलोसिटी क्या है आपका लेस है, और यहाँ पे वेलोसिटी क्या है मोर है। पर से जब नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी क्या है मोर है, लेकिन जब नीचे से ऊपर जा रहा है तब क्या होगा, नीचे में वेलोसिटी मोर होगा और ऊपर में वेलोसिटी क्या होगा, लेस होगा। हमेशा नीचे में क्या रहेगा, मोर ही रहेगा। ये किसका एग्जांपल है, यूनिफॉर्म। On the other hand, an object can travel with a non-uniform acceleration if its velocity changes at a non-uniform rate. तो एक्सेलरेशन भी दो है, एक है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक क्या है, एक है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म तो एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल क्या है, फॉलिंग बॉडी। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल क्या है, फॉलिंग बॉडी। वो क्या हो रहा है, सेम स्पीड से गिर रहा है और सेम डायरेक्शन में गिर रहा है। क्या गिरते समय कोई चीज अपना डायरेक्शन चेंज करता है, मान लो ये पेन को हम गिरा रहे हैं तो क्या ये डायरेक्शन अपना ऐसे से चेंज करके गिर रहा है, जब तक वो किसी No, चीज ma'am. से टकराएगा नहीं। Isn't it? अगर ये कोई चीज गिर रहा है और अगर रास्ते में किसी से टकरा गया तब ये डायरेक्शन चेंज करेगा, अदरवाइज द डायरेक्शन इज गोइंग टू रिमेन व्हाट, सेम, speed is same. Such type of acceleration will be called what, such type Uniform of acceleration। acceleration. उस समय जो फॉलिंग बॉडी है तो हम देखेंगे ना, v इनिशियल एंड v फाइनल हम चेक करेंगे ना। एक्सेलरेशन निकालना होगा तो क्या देखेंगे, हम इनिशियल वेलोसिटी देखेंगे और फाइनल वेलोसिटी उसका देखेंगे क्या है उसका। ओके, और किस टाइम पे वो कैसे चेंज हो रहा है, पर यूनिट टाइम क्या चेंजेस आ रहा है उसमें। तो ये जो फॉलिंग बॉडी है दैट इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल आपको दिया था वो किसका एग्जांपल था, वो किसका एग्जांपल है, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, टेल मी। पहले 4 मीटर है, फिर 2 मीटर है, पहले यहाँ पे 10 सेकंड है, फिर 2 सेकंड है, तो यहाँ पे दोनों ही चेंज हो रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन को क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म। ओके, डू यू हैव एनी क्वेश्चन, has anyone got any question, because the next topic is graph. Okay, and I don't want to start graph today. If you have any question, please clear your doubts.